Hi and welcome to the React series. I am really happy we are going to start our fourth lecture. So let's start. And please, if you are new to the channel, अगर आप channel पे नए हैं, please subscribe my channel. It takes really hard work to make such videos absolutely free of cost. बहुत मेहनत लगती है ये सारी वीडियोस फ्री में आपको सब देने के लिए. तो प्लीज आप सपोर्ट करिए थोड़ा मुझे सब्सक्राइब करके एंड वीडियोस को लाइक करके प्लीज, बिकॉज आप भी सीख रहे हैं, आपकी भी ग्रोथ हो रही है एंड आई वांट मेरी भी ग्रोथ हो. So let's start. So we go to src and in here we have app.js file. Let's quickly run npm run or npm start. Hit enter and this should start your React server. And also today I'm going to tell you how your React server can also work within your mobile. Because आपका जब React server start होता है उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो यहाँ पे चीजें स्टार्ट हो रही है वो एक लोकल होस्ट सर्वर बनाता है डोमेन में, जिसके थ्रू आप ये सेम टू सेम ऐप अपने मोबाइल में भी रन कर सकते हैं. लेट मी शो यू गाइस. यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल ऑन योर नेटवर्क. यू कैन सी ऑल दिस. अब आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर्स में जाके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी गूगल क्रोम में जा रहा हूँ. गूगल क्रोम में जाके यहाँ पे आप जो देख रहे हो ऑन योर नेटवर्क, मैं ये टाइप करने वाला हूँ http:// two forward slashes, and then I'm going to write 192.168.1.15, and then one more colon and 3000. Hit enter. It's http:// okay, 192.168 okay .1.15 and then colon and 3000. You can see the app has started here also. ये क्यों यहाँ पे नहीं दिख रहा है? Let me just write something. Let's start by typing hello world React app. Okay, hit enter, and now when we are on our browsers, this is compiling automatically reload, and you can see ये भी automatically reload हो गया है. अगर मैं आपको zoom करके दिखाऊं, if I show you by zooming out, just wait, let me show you. See here. Okay, you can see hello world React app. So like this you can also see कि क्या dimensions आपके app के साथ ही साथ में मोबाइल में भी आ रहे हैं. So let me do one thing. Just let me shrink this window to other side and my code to other side, जिससे कि आप देख पाए. अभी के लिए हम डायरेक्ट React ऐप यहीं पे हम अपना कोड करने वाले हैं. फॉर स्टाइलिंग पर्पसेस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी मैं index.html में जाके, let's go to a public folder index.html file, and I am going to link Bootstrap. So go to get Bootstrap, hit enter, and now go to Bootstrap. You need to go CDN, you need to have this CDN, CSS only this one, and you can now copy this CDN. Just copy it from here, close this window, and यहाँ पे index.html में just below a link tag, copy this, hit save, let the app bootstraps, and now in my mobile as well I can see completely my React application. That's the power, that's the beauty of React app, how it works. So now what I'm going to do is I'm going to use some bootstrap classes to show you. I'm going to use one div, and here I'm going to split my code into multiple lines. मैं यहाँ पे कुछ bootstrap की classes use करने वाला हूँ, like container, hit save. Okay, now I'm going to use one more div with class alert, alert primary. Okay, hit save, and you can see
वन अलर्ट बॉक्स अपेयर्ड। अब मैं मार्जिन टॉप ऊपर से कुछ MT4 मार्जिन दूंगा जिससे कि ये थोड़ा बीच में आ जाए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज सम अगेन बूटस्ट्रैप क्लासेस। एंड अगर आपको ये सब क्लासेस नहीं समझ में आ रहे, प्लीज आप पहले जाके बूटस्ट्रैप का लेक्चर देखिए, उसमें आपको ये सब क्लासेस समझ में आ जाएंगी। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर हेलो रिएक्ट, हिट सेव, एंड यू कैन सी हेलो रिएक्ट, एंड डायनेमिकली ये यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है। सिमिलरली ये यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है। सो मैं यहाँ पे ये भी चेक कर सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे मोबाइल में कैसा दिख रहा है, एंड मोबाइल में ये लुक आ रहा है, एंड ओवर माय ब्राउजर्स क्या लुक आ रहा है। So this helps me to build my React app as fast as possible. So this is it, and like this only I can just change the classes, and यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सारा मेरा look app का change हो रहा है। Just some classes, bootstrap classes, and इसके through I can just change whatever I want. Like for example, secondary, hit save, and you can see. Let me just stick to primary for now. So like this, we make a function in React in which we return a HTML code. And together, this JS plus HTML is known as JSX. Let me just write it over here. What is this? Let me just copy this, paste another one here, take some margin from the top, make it dark, and this is known as JSX. Hit save, and this is known as JSX. Okay, JSX में आप इस तरीके का HTML लिखते हैं एंड वो आपका एक फंक्शन के अंदर रैप होता है। This is how you make a small component. So this is the component. Okay, इसको React बोलता है component. अब ये आपका app.js फाइल जो होता है ये आपका मेन फाइल होता है। That means this is the parent file. इसमें आपको लिमिटेड कोड लिखना चाहिए एंड यू मस्ट मेक डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जिससे कि आप यहाँ पे उन कंपोनेंट्स को यूज कर पाए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अभी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हियर आई क्रिएट वन फाइल। हमने आपके पहले वाले लेक्चर्स में आपको बोला था यहाँ पे आप एक कंपोनेंट फोल्डर बना लीजिए। सो वी हैव अ कंपोनेंट फोल्डर ओवर हियर, एंड मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाने वाला हूँ कंपोनेंट्स के अंदर, विच इज नोन एज होम कंपोनेंट। ओके, अब मैं इस कंपोनेंट में एक न्यू फाइल बनाऊंगा home.js, एंड बिकॉज ये रिएक्ट एप्लीकेशन है तो इसमें आपको जो कंपोनेंट आप बनाते हैं उसको आपको कैपिटल से स्टार्ट करना है। इफ यू स्टार्ट द नेम विद कैपिटल, रिएक्ट ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड्स कि ये एक कंपोनेंट है। इट्स नॉट अ रूल बट इट्स अ कन्वेंशन दैट आपको किसी प्रोग्रामर को आपकी टीम को ये समझ में आना चाहिए कि रिएक्ट में आप कंपोनेंट्स बना रहे तो वो कैसे बनने वाले हैं, एंड फॉर दैट you need to start your page name with capital letter. Okay, so I'm going to add home.js file, and यहाँ पे I'm going to now use some imports. Import react from react, because react internally भी इसको import करता है, so I suggest कि आप ये जरूर करें। Now you need one function and I am going to say it home. अब आप इस फंक्शन का जो नेम देंगे, ओके, whatever name you will give to this function, यही नेम आपका कंपोनेंट का नाम बनता है। एंड ये फंक्शन ऑलवेज एक HTML इसको रिटर्न करना है बिकॉज दिस इज अ कंपोनेंट। सो मैं यहाँ पे अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ से ये सारा का सारा कोड कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड आई विल हिट सेव। एंड बिकॉज अब इसमें कुछ भी नहीं है तो अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे एक ब्लैंक चीज से इसको ब्लैंक डिव से एंड कर दूंगा। हिट सेव, एंड आपका सारा कोड अभी चला गया है। डोंट वरी, अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है। ये आपने एक सेपरेट नया कंपोनेंट बनाया है। फिलहाल इसकी स्टेट अपने आप में एक अकेली स्टेट है। और अगर आपको भी अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो अब मैं कैसे ये वाला अपना कंपोनेंट यहाँ पे ला सकता हूँ, बिकॉज ये एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है तो सारी चीजें मोस्टली हम इंपोर्ट्स वगैरह के साथ इसमें खेलते रहते हैं।
सो सिमिलरली आपको अभी क्या करना है, आपको अपना ये कंपोनेंट, होम वाला जो आपका ये कंपोनेंट है, इसको आपको app.js को प्रोवाइड करवाना है। अब आप कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लिखना है उस कंपोनेंट का पाथ। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट होम कंपोनेंट आपका, पर आपको कहाँ से लाना है वो, आप उसका पाथ देंगे फ्रॉम, मेरा कंपोनेंट एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर मेरा एक होम फोल्डर है, वहां से आएगा मेरा ये कंपोनेंट। अब ये जो आपका होम कंपोनेंट है, ये कैसे आएगा यहाँ से? सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आपका होम कंपोनेंट, होम फंक्शन आपका इसके अंदर है। इसको आप बाहर कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, हमें वो देखना है। तो वो बाहर प्रोवाइड करवाने के लिए हमको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारे पास होता है। इंपोर्ट से हम चीजें लेते हैं, एक्सपोर्ट से हम कोई भी हमारा जो मॉड्यूल्स या फिर कोई भी हमारा फंक्शन या वेरिएबल है, उसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। So एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड दिस एवरीथिंग कम्स आफ्टर ES6, ECMAScript 6 के बाद में ही ये वाला सिंटेक्स आया है हमारे पास में। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सपोर्ट करना है हमको होम को, तो मैंने यहाँ से होम को बाहर निकाल दिया, बट आप यहाँ पे एक वर्ड लगाएंगे डिफॉल्ट। दैट मीन्स मुझे इस फाइल में से, ये फाइल जब भी रिएक्ट रीड करेगा, इसमें से एक चीज तो डिफॉल्ट मुझे बाहर भेजनी ही है। मैं क्या चीज बाहर भेजूंगा डिफॉल्ट, वो है मेरा होम कंपोनेंट। तो जैसे ही आपने ये लाइन लिख दिया, आप देखेंगे यहाँ पे इसको ये चीज अवेलेबल हो जाएगी। अब ये चीज अवेलेबल होने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक HTML जैसा टैग लगाऊंगा और मैं उसको ऐसे यूज करूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव ऑल करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ मुझे एरर्स आ रहे हैं। क्या एरर्स आ रहे हैं वो जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एरर्स हमें पता होने चाहिए कि क्या हमें एरर्स आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे। तो होम के अंदर मेरा एक होम कंपोनेंट है, ये था मेरा एरर। अब आप देखिए, आपको कंपोनेंट एग्जैक्टली चल रहा है जैसे वो पहले चलना चाहिए था। दैट्स द पावर ऑफ रिएक्ट, दैट्स हाउ यू वर्क विद कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। So this is how you can make components in React. स्पेशल नोट, आपको उसका इंपोर्ट स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरा, आपको वो कंपोनेंट एक्सपोर्ट करना है। तीसरा, वो कंपोनेंट आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। एंड ऑल्सो, आप जो भी कंपोनेंट बनाएंगे वो एक फंक्शन होगा जिसके अंदर आप HTML लिखेंगे एंड वो आप बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। So that much, pretty much it for this video. If you like the video, do hit the like button. And if you're new to the channel, please subscribe to my channel because I bring lots and lots of technical videos, series, absolutely free of cost. Together, we learn the technology and we rule the industry. I will see you in the next lecture. Till then, keep learning, guys.